Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all of you. Thanks for joining us again. Today's lecture will be delivered by Javed Saab. जावेद साहब योगा को लेकर लेक्चर देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स जो उनके लेक्चर में होंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे. We'll directly switch over to Javed साहब because we have some time limitations. मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डायरेक्टली क्लास अपनी स्टार्ट करें और तब तक हमारा रूम भी फिल होता रहेगा. जावेद साहब प्लीज स्टार्ट. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Modesty is the part of faith, and faith is in the paradise. But obstinate is the part of hardness of the heart, and hardness of the heart is in the hell. Respected to all dignities, Islamic greetings to all. Assalamu alaikum. We have been assembled here for a live session. I am Javed Ahmed Hamdani, Department of Youth Service Sports. It is a great honor for me to speak something on this topic, yoga and its importance. Before going to the main subject, let us see what yoga actually means. It includes 8 stages. First stage is yama, self-control. Self-control, unless and until we should have a self-control, we should not go to yoga, performance of yoga. Nyama is another stage that is called religious observance. When you are very much religious, you go for offering prayer, then Nyama will come into your spiritual part. Then third stage is asana. It is a fundamental posture, physical posture. People have a wrong conception. They think yoga is an exercise. Actually, yoga is not an exercise. It is a fundamental posture you have to perform. Sithiram sukham asanam. Sithiram means one should be very calm. Sukham, comfortable. Asana means performing a fundamental posture of a body. Then fourth stage is pranayama. Pranayama is the regulating of breath. How you are taking breath in a day-to-day life, you are breathing, but it has got some techniques which we will discuss today on this topic. Then there is a pratyahara. Pratyahara means withdraw, suppression of all external events. Fasting, I think, is the best for pratyahara because at that time we control our body. That is, we are suppressed by external events. If you go wrong direction, this fasting will stop you. That's pratyahara. Then there is a dharana. Dharana is a very concentration of a particular object. You have to concentrate. Namaz is the best for concentration. You go for concentration. There is kirat and suju. Everything is concentration. That is dharana. Then there is a dhyana. I think I am correct pronouncing it correctly. Dhyana. It is D-Y-H-A-N-A. It is a contemplation of solitary objects for long. It is related with Pashmutas. We'll discuss it later on. What actually dhyana means. It is related with Pashmutas. And Pashmutasana you are very much aware of how to perform that asana. What benefits it gives. Now you see if life has become hopeless, meaningless, not knowing what to do, where to go, where to look, directions have confused. Just today we are facing pandemic. All roads have been disappeared. Future has become dark. As it looks, this is an end. Then where to go?
Hatha Yoga Pratipika has given a very good definition according to Patanjali. It means union, yoke. In a nutshell, we say yoke. Yoke means integrate, to connect body, mind, and soul with mental and emotional spiritual. Samadhi is the eighth stage, is the last stage, where one's concentration and becomes totally absorbed in a trance state. This is the higher stage of yoga, Samadhi. Now let us see in a nutshell what yoga actually means. Yoga practices includes posture, which we are very much aware of postures, making fundamental postures of different asanas. Breathing, that's pranayama. Experts have given a lot of techniques for it. Purak, Kumbhak, and Recheck. In our day-to-day life, we always do that. But it has got some technique, how you will do Purak, Kumbhak, and Recheck. We'll discuss it later on. Then there is third stage that's called control of subtle force. This force, what actually this force is? This is not an oxygen. We'll not say it's an oxygen. Maybe it is in the atmosphere. This subtle force, we are controlling it. Some scientists say that it is the ether. I think you might understand well. Everybody are science students, what actually ether means. In yoga, we are controlling it by mudras and bandhas. And now you say, what is mudra and bandhas? Mudras are symbolic gestures, symbolic mudras. You know, Yog Mudra. I think you have seen the picture of Yog Mudra. And bandha. Bandha means contraction. It's a symbolic gesture. You can show it with fingers and hands sometime. Then there is a fourth part that's very important part in yoga. That's called the cleansing the body, mind. That's called Shat Karma. And fifth stage is a very important stage, that is chanting of mantras. They say it's a chanting of mantras. It's nothing, it's wazifa, nothing else. You go for performing namaz, you will chant many wazifas there. That's mantras. And many forms of meditations. Now I will discuss here first Shat Karmas, because Shat Karma is a new thing here. Today we'll discuss here what is actually Shat Karmas are. There are 6 Shat Karmas. One is called Niti, Jal Niti. Jal Niti, you can take jal, water, simple water in a pot and keep with your nose and clean your nostrils with water, simple water, lukewarm water. Why? Because it helps you inhaling oxygen. And then there is another technique that's called Sutraniti. In Nitis I'm talking. It's very easy, but you should perform it with some expert. I have made some videos for it. Inshallah, if I get time, I'll make a video and you observe how it is to be performed. It's an easy thing. It is a sutra. It is a rubber catheter, simple. You will insert from one nostril and take it from the larynx out of there. It's easy. You can. Then there is a dhoti. Dhoti is a cleaning of digestive tract. It's a simple dhoti. You have to get a muslin cloth. It may be 5 or 6 meters long. Just like bandage we have. उसको sterilize करते हैं हम पानी के साथ, दूध के साथ भी कर सकते हैं sterilizing. So you can consume that cloth. That is called digestive tract, cleaning of digestive tract. तो नीचे तक उतारना होता है खलक से, तो उससे थोड़ा पानी भी पीते हैं. It's very easy. It's not becoming panic how we cannot do it. तो उसमें से जितनी भी बीमारियां वो सब दूर हो जाते हैं. Then you will afterwards, when you perform that kriya, you feel yourself that you are appetited. You want to eat more and more food.
उसमें क्या होता है, वो म्यूकस होता है, म्यूकस के साथ क्लॉथ के साथ वो निकल जाता है सारा. Somebody is having asthma, bronchitis, बलगम की प्रॉब्लम हो, वो क्लियर होता है उससे. तो आफ्टरवर्ड्स यू विल फील वेरी लाइट अगर आप धोती करेंगे. इट्स अ सिंपल क्रिया, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इसमें सिंपल मसलन क्लॉथ लाना है, उसको स्टरलाइज करना है पानी या दूध के साथ, देन यू हैव टू कंज्यूम इट फ्रॉम द माउथ. तो वो डाइजेस्ट करना है अंदर. स्नॉब आप बोलेंगे पूरा पूरा नहीं, उसका हाफ पोर्शन बाहर रखना होता है. तो उसके साथ तीसरा जो मैं क्रिया बताऊंगा, दैट्स कॉल्ड नावली चालन. नावली चालन is an abdominal massage, simple abdominal massage. You know, some muscles we have voluntary and some muscles we are involuntary, but I think this is involuntary muscle, abdominal muscle, rectus abdomen जिसको कहते हैं. It's an involuntary, but you have to make it voluntary. पहले ऐसी एक्सरसाइज उड़ान बंद से करना है, ये आपको कंट्रोल में लाना है. तो you can go doing massage with that muscle while doing that क्रिया धोती. तो उसके साथ वो क्लियर हो जाएगा, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम वो निकल जाएंगे. इसमें एक मतलब मानंद है, जब कुआं होता है उसके अंदर वो पानी होता है, पानी में वो डस्ट पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, तो जब उसको क्लियर करते पानी साफ निकलता है. इसी तरफ ये भी ये ऐसे ही है. जब आप ये धोती करेंगे विद द हेल्प ऑफ नावली चालन, मसाज हो जाएगा उसको, तो देन इट विल बी, यू विल बी ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट. Then there is a Kapalbhati. Kapalbhati, people have got wrong conception. Kapalbhati comes in a pranayama, but we take it in a pranayama also. We don't mind, क्योंकि जब आप देखते हैं टीवी पे या कोई इसका एक्सपर्ट दिखाता है, वो प्राणायाम में ही वो बताता है कि this is Kapalbhati, you do this. Purification of frontal lobes. Just it is a purification of frontal lobes. जो भी वायरस है वो निकल जाता है इससे. It's an obvious. तो निकलेगा ही, ये तो है ही पता कि जब आप फोर्सफुल एयर को लाएंगे, क्योंकि इस पे सारा कंसंट्रेशन आपको इनहेलिंग से करना है. पुरक, कंसंट्रेट ऑन पुरक. पुरक, कुंभक एंड रीचक इज अ टेक्निकल वर्ड्स. पुरक मींस टू टेक, inhale oxygen. Then purak means retention. Retention means to stop air in your body, in your lungs. Don't let it go out. And recheck means exhalation. You have to take out all oxygen out. तो इसमें ऐसा नहीं है, कुंभक पूरक रीचक नहीं है इस कपालभाति में. इसमें सिंपल you have to concentrate on exhalation, not inhalation. तब आपका फ्रंटल लोब क्लियर हो जाएंगे, तब ये बनेगा कपालभाति, फोर्सफुल एयर. क्योंकि करना दोनों है, मैं नहीं बोलूंगा, इज अ टेक्निक, करने तो दोनों है, पूरक भी करना है और रीचक भी करना, मगर रीचक पे कंसंट्रेट करना है आप, क्योंकि सांस जब छोड़ेंगे वही आवाज आनी चाहिए. तो जब तक आप सांस नहीं अंदर लेंगे तब तक रीचक नहीं हो जाएगा. क्या निकालेंगे बाहर? कुछ नहीं. तो ये कपालभाति है, ये टेक्निक है कपालभाति का. जस्ट क्लियर, प्यूरिफाई योर फ्रंटल लोब्स. देन 6th stage is a Tratak. Tratak is a simple, in a Sanskrit word, it's a central fixation, blinking and gazing to concentrate a single point. Tratak. You know retina, we have got eye, there is a black spot in it, जिससे हम अच्छा देखते हैं, जिसकी eyesight बड़ी अच्छी होती है. If you want to clear your vision, defect of vision, you do go for Tratak. It's the best exercise, Tratak. तो उसमें क्या करना है, वो ब्लैक स्पॉट को आपको कंसंट्रेट करना है. वही आंख में जो होता है वही, इट्स ओनली टू नो, इट डज नॉट ओनली डेवलप द सेंसिटिविटी ऑफ पॉइंट, दैट सेंट्रल फिक्सेशन. ट्राटकी को कहते हैं सेंट्रल फिक्सेशन. वो एक डिस्क रखना है, उसमें आपको स्पॉट रखना है, ब्लैक स्पॉट, उस पर कंसंट्रेट करना है विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज. ये आपका, इससे आपका जो ब्लैक स्पॉट है रेटिना का, वो टोन अप हो जाएगा. It does not only increase the sharp sightedness and also improves your circulation. अब देखिए defect of vision में कितने चीजें होते हैं. Some people is having hypometropia, some people is having myopia, astigmatism, presbyopia. There are a lot of defect of visions.
क्योंकि ओल्ड एज में ज्यादा मैंने देखे हैं कि उनको एस्टिग्मेटिज्म होता है, उसमें वही ब्लैक स्पॉट खत्म होता है, तो आंख नहीं देख पाती है फिर प्रॉपरली किसी ऑब्जेक्ट को। तो अगर ये पहले से हम ये रखेंगे जहन कि ये सेंट्रल फिक्सेशन करेंगे, त्राटक करेंगे, तो विल डू इन अ कैंडल त्राटक और सम विल पुट सम स्पॉट हियर ऑन देयर एंड विल कंसंट्रेट विदाउट ब्लिंकिंग द आई। तो उससे आपका क्या वो आपका वो सेंट्रल फिक्सेशन खाली डेवलप नहीं हो जाएगा सेंट्रल पॉइंट, उससे आपका शार्प साइडनेस आ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगा। Then let us talk of asanas. Asana is a very important aspect in yoga because everybody are doing asanas. Shabir Saab, my voice is coming. Shabir Saab, are you there? Yes, you are audible, sir. My voice is clear. Yes, it's clear. You can continue, sir. Shall I continue? Yes, continue. Asana, it has seen by the experts and some expert researchers that some stillborn diseases like diabetes, osteoarthritis, or rheumatism, inflammation of joints. It's a very common disease nowadays here. People are suffering a lot. Diabetes, osteoarthritis, inflammation of bones. अब देखिए वायरस हो गया, उसे कहते हैं कि ब्लैक फंगस से मरते हैं जिसका डायबिटीज होगा, तो we have to be very cautious about these things. तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं फ्यू आसनास की, उस जो रिकमेंड दिए गए हैं एक्सपर्टों ने कि किससे क्या चीज ठीक होती है। सर्वांग आसना इज वेरी important asana. It is inverted pose. Sarvang asana, you are very much aware how to perform this asana. Then there is mat asana, or you say masa asana. Yeah, if you keep silent T, it's mat asana. Fish pose. You can do that also. Hal asana is very good asana. You have to make a plug pose. Hal asana. But it should be Sthiram Sukham Asanam. Then it will give, otherwise it will give adverse effect. Agar aap aise hi karenge, you will make an exercise. This is not a yoga. You have to concentrate on such asanas. जैसे मैंने अभी आपको बताया हल आसना, प्लग पोज, उस पे कंसंट्रेट आप करेंगे। पहले ड्यूरेशन आप देखेंगे, 2 मिनट आप रह सकते हैं या 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे, तो ये इसी तरफ ये ड्यूरेशन इसकी बढ़ जाती है। तो ये जो आसनास है, अच्छा जो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड इसको कहते हैं। थायराइड इज द नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट, थायराइड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। It's called watchman, standing between physical and mental body, this thyroid gland. Too little production of thyroxine by the thyroid gland is known as hypothyroidism. It may cause autoimmune disease. किसी का माइक म्यूट नहीं है, ऑन है, बैकग्राउंड नॉइज। Somebody is talking, sir. Somebody is talking. Yes. I'm getting. Simply understood that very person. Please tell them to mute their mic. तो hypothyroidism होता है जब आपका प्रोडक्शन थायरॉक्सिन नहीं निकलता है, तो उससे क्या होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। तो इट कॉजेस ऑटोइम्यून डिजीज। पुअर इनटेक ऑफ आयोडीन, ये भी एक कारण है। या हाइपोथायरॉइडिज्म में कॉज नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ओबेसिटी, ओबेसिटी भी होती है, मोटापन होता है, जॉइंट पेन होती है इससे। तो इनफर्टिलिटी भी है इसमें, mostly females is having infertility, so it has been recommended Viprit Kareen Asana. Viprit Kareen Asana, I think I have pronounced it correctly. It's Viprit Kareen Asana. Infertility. So what is Viprit Kareen Asana? It's just like a Sarvangasana. Sarvangasana और इसमें कोई फर्क नहीं है. It's the initial stage of Sarvangasana. Sarvangasana is the final stage. Sarvangasana is the final stage. And we have to, and heart disease, example, aging भी होती है ज़्यादा, premature death होती है. It
gives rise to many illnesses like mental slackness, loss of memory, जिसको हम Alzheimer's disease कहते हैं. So I have seen many persons in Kashmir, they are in this disease, loss of memory होता है. Old age में ज़्यादा होता है. आजकल ज़्यादा मशरफ problem छ आसान इंसानस Alzheimer's disease छ गसान because we are बहुत सारे कारण हैं इसके. Food के कारण भी होता है ये बड़ी खतरनाक डिजीज है. तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं. वैग, जिसको वैग कहते हैं. तो वैग इसमें सारा इंसान भूल जाता है, अपने आप को भी कभी कभार भूल जाता है कि कहाँ से आया हूँ मैं, कौन हूँ, घर में कौन. ऐसे बहुत सारे पेशेंट है घर में, दे आर इन अ वैग स्टेट. तो उसको एल्डिमियर्स डिजीज कहते हैं. तो इट कैन बी ट्रीटेड. सर्वांग आसन एंड हल आसन, they are the very good asanas for these things to tone up your thyroid gland, क्योंकि thyroid gland से ये सब बीमारियां उठती हैं. तो इसमें एक दूसरा आसन है जिसको हम शीर्षा आसन कहते हैं. तो इसको किंग ऑफ द आसन भी कहते हैं, शीर्षा हैंड स्टैंड आसन. अच्छा, जो ये प्रैक्टिस करता है शीर्षा आसन रेगुलरली, इसमें एक पिनील ग्लैंड होता है शीर्षा, डीप इन द हेड. तो इसको थर्ड आई भी कहते हैं. तो उसमें एक सिक्रीशन निकलती है, उसको मेलेटोनिन कहते हैं. तो जिसको ये मेलेटोनिन की सिक्रीशन कम होगी तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. तो हिज मतलब ये जो है पिनील ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल करता है स्लीप, wake up cycles, and this is also called the third eye. It also acts as the physical and spiritual part, pineal gland. तो कभी कभार आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल पावर भी होता है. इट इज बिकॉज ऑफ पिनील, इट इज नथिंग पिनील ग्लैंड. या टोने का मेलेटोनिन गश्नियर ज्यादा, देन ही विल परफॉर्म सच थिंग्स जो होता है उसमें स्पिरिचुअली में. तो ये इजी है. इसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि एक यूरेनियम भी कैरी करता है, तो ये वो डोरमेंट होता है. अगर इसको एक्टिवेट करना है, दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉर शीर्षा आसन. तो इससे और एक चीज है जो ट्रीट होती है, इंसोमैनिया, लैक ऑफ स्लीप. इंसान स्लीपलेसनेस होता है, उससे ये शीर्षासन इज बेस्ट. भुजंगासना is also very helpful in stress management. Bhujangasana. Bhujangasana, the organ of endocrine gland, especially adrenal gland and pancreas, जो हमारे जिस्म में हैं. जो ये adrenal gland जो है, it is on the top of the kidney. तो pancreas भी somewhere वहीं पे होगा. तो ये दोनों जो gland है, ये बड़े important gland है body के लिए. तो इसमें पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस निकलता है. जब किसी को कम होता है वो पैनक्रियाटिक जूस, वो डायबिटीज में मुब्तला होता है, वो कहता है बस अब मुझे इंसुलिन करना है. इंसुलिन करने की कोई जरूरत नहीं है अगर उसने पहले से ये 2-3 आसने किए हैं. एक मैंने किस पे स्ट्रेस दिया है, भुजंगासन, सरपेट पोज. तो भुजंगासन करते हैं सब. सरपेट पोज बिल्कुल सरपेट बनाना है, सांप को देखना है पहले, शक्ल उसी को कंसंट्रेट करना है, उसी का पहले दिमाग में लाना है कि ये पोज कैसे हैं. आधे बनाते हैं इसको एक्सरसाइज, वो इफेक्ट नहीं करता है, दैट इज नॉट इफेक्टिव. तो इसमें बहुत सारे कारण हैं. तो उसमें क्या होता है, वो एक्टिवेट होते हैं, पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, उसमें पैनक्रियाटिक जूस निकलता है एक्टिवेट, व्हिच हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग दिस ऑर्गन्स. तो हार्मोन जो निकलता है वो एड्रेनलिन निकलता है. तो इसमें अब दूसरा चौथा पार्ट मैं आपको बता दूंगा, टच करूंगा. आई विल नॉट डिस्कस इट सो मच बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. तो जो मैंने आपको मुद्राज एंड बंदाज के बारे में कहा है कि दे कंट्रोल द सब्टाइल फोर्स. तो मुद्राज किनको कहते हैं, वो योगा सिंबॉलिक योग मुद्रा होता है, दैट इज सिंबॉलिक गेस्चर बाय फिंगर्स एंड हैंड्स. कभी कभार सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं ऐसे कोई योगीज, तो वो दे शो सिंबॉलिक गेस्चर बाय फिंगर हैंड. तो वो उससे कंप्लीट होता है सिंबॉलिक गेस्चर से, दैट इज कॉल्ड मुद्राज. तो बंदाज का मतलब है कंट्रैक्शन करना, कंट्रैक्ट करना, सुकड़ना. तो इसमें क्या बंदाज में क्या क्या बंदाज है, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीजें आपको मद्देनजर रखना है. तब तक योगा कंप्लीट नहीं, हम आसना करते हैं, दैट बिकम्स एन एक्सरसाइज.
अगर ये, क्योंकि ये प्राणायाम में सारा आता है कि जब तक आप सांस नहीं लेंगे, सांस को छोड़ेंगे नहीं, इसमें एक रेशो होता है जो मैंने आपको बताया, पूरा कुंभक और रीचक। पहले अर्ली स्टेज में 1:2 करते हैं कि पहले से ही नहीं सब कुछ करना है, इसको स्लोली करना है ताकि इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद जब ये एडवांस स्टेज में आता है, इसको फिर बढ़ाना है 1:4:2। दैट मीन्स पूरक शुड बी 1, कुंभक शुड बी 4 times, देन रीचक शुड बी 2 times। तो इससे ये इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो इसमें बंदाज में क्या है, इसमें एक है उड़ियान बांध, रेजिंग ऑफ डायफ्राम। उड़ियान बांध में हम रेज करते हैं डायफ्राम, एवरीबॉडी नोज हाउ उड़ियान बांध इज डूइंग। तो दूसरा है जलंधर बंदा। जलंधर बंदा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बंदा, दैट इज कॉल्ड चिन लॉक। तो उसमें आप मतलब अगर आप देखेंगे, आप सर्वंग आसन करेंगे, उसमें भी जलंधर बंदा होता है, चिन लॉक होती है उसमें, क्योंकि आपको पता है कि हलक के पास एक जॉगलर नोच होता है, जब उसको सप्रेशन करना होता है, तो दैट्स कॉल्ड जलंधर बंदा, कंट्रैक्शन ऑफ टंग। देन देयर इज अ जिवा बंदा। जिवा बंदा मींस इट्स अ कंट्रैक्शन ऑफ अ टंग, वो भी एक बंदा है। तो प्राणायाम के जितने भी किस्में हैं वो 8 किस्में हैं। तो एक है नाड़ी शोधन, जिसको आप अनुलोम विलोम कहते हैं। तो उसमें आपको वो कंसंट्रेट करना है, फिंगर यहाँ पे रखनी है, जस्ट यू हैव टू क्लोज राइट नोस्ट्रल, देन टेक इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल। मतलब ये सब चीजें ये आती हैं नाड़ी शोधन में। क्यों, इसमें भी एक लॉजिक है, आप क्यों लेफ्ट करते हैं फिर क्लोज करते हो राइट, क्योंकि इट हैज सीन दैट दिस इज सूर्य नाड़ी एंड चंद्रा नाड़ी। सूर्य नाड़ी जो होती है वो सन के साथ रिलेट होती है, जितना भी हॉट एयर है वो उसके अंदर जाता है फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल, तो वो आपको एनर्जी देता है अंदर से, सूर्य नाड़ी। Then there is Chandra Nadi, a left nostril you have to use. You have to close you have to keep the finger on the right nostril and inhale from the right nostril. Right nostril is the Surya Nadi. Left nostril is the Chandra Nadi. Chandra Nadi you can take the cool air. ठंडा हवा अंदर आ जाता है। I think today's lecture I have, मैं इख्तिताम पजीर करूंगा यहाँ पे। So inshallah next time if like an opportunity, yoga is a very vast subject. I will discuss it more and more. Maybe I will make a videos for it. You will have know how to do this technique. पहले भी मैंने बनाया था वीडियो, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो गया क्योंकि टेक्निकल के कारण हमें ऐसे। We request you, we encourage you to shoot some good quality videos so that we can share with our viewers, our officials. तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। तो ये इट वाज मोर ऑफ मेडिकल टाइप ऑफ थिंग। हालांकि आपने स्टार्ट में बोला कि सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आई डोंट थिंक सो, सारे मेडिकल के नहीं होते हम में से, आर्ट्स कॉमर्स के भी कुछ होते हैं। सो देयर आर पर्टिकुलर टर्म्स जो हमें समझ में भी नहीं आती है कभी-कभी। बट कभी समझ में आपने जैसे आर्ट्स स्टूडेंट हो, आपने जैसे ब्रीफ किया तो इट वाज वेरी गुड, इंफॉर्मेटिव था। और अगर इसको सम अप करें जो आपने सारा बोला, तो योगा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं अपनी लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि योगा मींस यूनियन, ज्वाइनिंग, इट मींस योग, बाइंड, अटैच और कनेक्ट। माइंड कनेक्ट, यस सर, दिस इज एंड इट कनेक्ट। अब आसना सिर्फ हम करते हैं कनेक्ट, बाकी चीजें कहाँ जाते हैं, वो तो हम वो होता है कनेक्ट। दैट्स व्हाई वी आर नॉट what you said, sir, ultimately in the nutshell, it's the unification of physical, mental, intellectual and spiritual aspects of life. तो ये सर आपने हमें बताया, क्योंकि आपकी अभी दूसरी क्लास भी है, 12-15 पे आपकी क्लास होगी। और अगर हम इसको योगा को फिजिकल एजुकेशन में हम डिस्क्राइब करें, फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से देखें, तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ पोस्चर्स जो कि कनेक्टेड होते हैं, सीक्वेंशियल जो होता है, फ्लो होता है। जैसे जय साहब बोल रहे थे कि एक तरतीब में करने हैं, कितना टाइम किस पे देना है। जैसे हमें ताहिर साहब भी कल बोल रहे हैं, रेपिटेशन का ख्याल रखना है, और कब ब्रीथ इन करना है, कब ब्रीथ आउट करना है, इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है। तो ये सारा जो और ये एंड होता है रिलैक्सेशन से, रिलैक्सेशन तो या मेडिटेशन से एंड होता है। So that was all about Javed sir's class today, and we are already physical aspect जो इसका है। साथ में खत्म करूंगा सर, डॉक्टर अलामा इकबाल के साथ इंशाल्लाह। तो ये इसके साथ थोड़ा सा रिलेट होता है, तो मे बी
लोगों को असर हो जाएगा। वो फरेब खुर्द शाहीन जो पला हो करगसों में, वो फरेब खुर्दो शाहीन जो पला है करगसों में, उससे क्या खबर है शाहीन रावे रस्मे शाहबाजी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So nice. ऐसा थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, क्योंकि आज आपने आपका जो इम्पोर्टेंस का लेक्चर था योगा एंड इम्पोर्टेंस, यू टचड ऑल द मेडिकल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, कौन से आसना से कौन से मतलब रेपिटेशन से किस ऑर्गन पे असर होता है, कौन से एलिमेंट या कोई बीमारी होती है उसको हम कैसे रिड्यूस या कम या खत्म कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग टू योगा। सो इट्स अ यूनिवर्सल थिंग नाउ। सो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, अगर उन्हें चैट में अपना नाम अपनी डिजिग्नेशन और पोस्टिंग नहीं लिखा है वो जल्दी से करें। वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स, अभी हमारे पास टाइम है, वो वहां पे लिख दें। तो आपकी अगर कोई सजेशन भी है, यू कैन राइट डाउन दैट इन द चैट विंडो में, आप वो हमें ये कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक इट अप विद आवर ऑफिसर्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो सजेशन कभी कभी ऐसा भी आपकी तरफ से आ सकता है जो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो हमारी जो कोर्स अभी इस कोर्स की इंचार्ज हैं आबिदा मैम, शी इज वेरी मच हियर, आई वुड रिक्वेस्ट हर टू कंक्लूड। आबिदा मैम प्लीज। सर, पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जो भी यहाँ पे आए हैं। हमारे पास चाहे आरई के हैं इस टाइम या फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स हैं, सबके पास नॉलेज बहुत है। और शायद एक दो अभी जो आरई के हैं या फिजिकल मास्टर्स, कुछ ने बोला कि हम आर्ट स्टूडेंट रहे हैं, तो लेकिन तब भी ऐसा है कि थोड़ा बहुत हमें बीपीएड में पता चल ही जाता है, योगा इज पार्ट ऑफ बीपीएड सिलेबस। तो लेकिन आपके लिए हाँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आर्ट स्टूडेंट्स। मैं भी आर्ट स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो हम जो भी सर ने अभी बताया, तो मैं यही चाहूंगी कि वो एक एक करके ये इलॉबरेट हो सबको कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से करना है, ताकि ये रियल सेंस में इम्प्लीमेंट हो। अदरवाइज इट इज मेयर ए सिलेबस टाइप के हम पढ़ रहे हैं एंड दैट्स इट। क्योंकि हम जब तक इसको पता न चले कि कैसे करना है, मेरे ख्याल में तब तक हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। जब हमें खुद पता नहीं है, हम आगे स्टूडेंट्स को नहीं बता सकते। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत नॉलेज है सर को, बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर इसमें से एक पार्ट पकड़ के वो डेमोन्स्ट्रेट हो प्रॉपरली, ताकि जो हम देखो, जब तक हमें मरना है तब तक सीखना है, ताकि हमें भी पता चलता है कि रियल सेंस में हाउ टू प्रैक्टिस इट एंड हाउ इट कैन इफेक्ट इन ए गुड सेंस टू अ पर्सन। तो ये मेरी एक सजेशन है कि अगर हम एक ही आसन करें, हम इसको नहीं पहनाएंगे। यू आर राइट, यू आर राइट जी सर। क्योंकि सर आपने जितना भी बोला इट वाज फैंटास्टिक, वी आर ऑल इंस्पायर्ड बाय योर नॉलेज। बट द थिंग इज कि हम सब मोस्टली आर्ट स्टूडेंट आते हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेडिकल वाले ये हम सबको पता है प्रेफर नहीं करते, तो हमें अच्छे से पता टाइम नहीं मिलता है। No, ma'am, I would like to interrupt here. I'm a medical student, so I prefer this job. Sir, you are exception. Sir, you are exception. Mostly are medical students. That is why BLS is taught by you. Thank you. वहाँ पर भी आप मेडिकल पढ़ते हैं, किन्जोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं। नहीं सर, मैम आप सही बोल रहे हैं, हम एनाटॉमी किन्जोलॉजी पढ़ते हैं, बट द थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, जब तक हमें किसी चीज की पता ना हो हाउ टू प्रैक्टिस दैट थिंग, वी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट इट वेल टू द स्टूडेंट्स। अगर मुझे खुद पता है कि फ्रंट फुट पे कैसे डिफेंस करना है, अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेशन उसका आता है, तभी बच्चे को समझ आएगा। अगर मैं उसको थ्योरेटिकली बोलूं कि पहला फ्रंट फुट इधर होना चाहिए, बैक फुट हील थोड़ा रेज होना चाहिए, वो बोलने में और खुद करके दिखाने में बहुत फर्क है मैम। So I request on part of each and every art student here, we are part of this department and we definitely want to implement this knowledge to our students. So I request, चाहे ताहिर साहब हैं, चाहे आज सर ने बोला, जितना भी आपने बोला, आप लोगों के पास there is full of sea of knowledge, but हमें थोड़ा थोड़ा करके आप इसको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, ताकि हम भी आगे इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए शॉर्ट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करूंगा, इफ दे कैन शूट शॉर्ट वीडियोस, एक आसना का 5-5 मिनट का, वी विल कंटिन्यू टू शेयर, हम अपने चैनल्स पे शेयर करते रहेंगे, तो उससे सीखने में आसानी होगी। एक वीडियो मैंने बनाया था, वीडियो अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि छोटे वीडियो, एक आसना का एक ही वीडियो बनाना है, तो अच्छे से कंप्लीट हो, सो दैट वी कैन शेयर विद आवर। Let us conclude it by thanking Naima ma'am also, क्योंकि उन्होंने भी लास्ट कोर्स में जो पहला वो मेंटल फिटनेस पे लेक्चर दिया था,
हाँ मेंटल हेल्थ पे, वो एक सबसे बड़ा इशू है मेरे ख्याल में। अगर उस पे भी थोड़ा सा हम और वर्कआउट करें आगे तो शायद फायदेमंद हो। आई थैंक ऑन बिहाफ ऑफ माय डिपार्टमेंट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली जो हमें आजकल पढ़ा रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू दोज, क्योंकि पता चल रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत नॉलेजेबल पर्संस हैं, बस हम थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालते इसको आगे पहुंचाने के लिए। वी आर क्रीम ऑफ द डिपार्टमेंट, वी आर प्राइड ऑफ द डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शबीर सर। बस हमारा टाइम भी मैम खत्म हो रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी, यू कैन लीव नाउ, लीव अ मैसेज आल्सो, be your name, designation and place of posting. Thank you very much.